Assalamu alaikum guys, welcome back. This is Shafat Khan on your screen. Okay guys, so I'm back with the very first video of 2022 guys for AKU and NMD CAT preparation guys. Okay, first of all those who prepared for the 2021 NMD CAT, their provisional merit list is out today, I think. Okay, so congratulations to everyone who got their results, their expected results, and all those who didn't get them. It's fine guys, it's not the end of the world. If this is your very first attempt, you guys can appear again in the second attempt, or you guys could just go into try your luck. Okay, keep trying till the very end. Okay, you might get fit somewhere. Okay, so but do not lose hope. Okay, even if you don't get in this year, you guys next year inshallah 2022, the best time to start preparing for 2022 is right now. Okay, it's January 16th today, right? And this is the best time to prepare for both AKU as well as NMD CAT. The reason why I'm saying that is because now on AKU's website aku.edu, the expected NMD CAT date, the AKU entrance exam date has been announced. It's 23rd July. Okay, 23rd July is the expected AKU exams date, entrance exam. So right now, if you start preparing, you'll have approximately 6 months to prepare, and that's more than enough. Okay, if you are in second year, you have to start preparing now. Even if you are preparing for your second year exams or your A2 exams, or even if you are giving your Excel A2, okay, अगर AS में रिजल्ट अच्छा नहीं आया एंड आपको A2 का एक्सेल देना है, फिर भी आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ. क्योंकि अभी अगर इफ यू कीप ऑन डिलेइंग दिस, आफ्टर दिस देयर विल बी नो टाइम लेफ्ट at all for you to prepare for AKU, nor will there be any time left to prepare for NMD CAT. Okay, so दोनों चीजों को आप रिस्क कर रहे हैं अगर आपने अभी preparation start नहीं की. The reason why I'm highlighting that point over here in this video is because some of my personal students in our AKU NMD CAT program, even they told me that they have this exam coming up, so can they just delay preparation for AKU? And I said no. Okay, the answer to that is a straight no, because if you are doing that, you might end up taking a gap year, okay, for preparing for AKU and NMD CAT exam alag se, all right? And no one wants to do that, right? It's a highly risky thing. So the best thing is, even if you have like 5 to 6 exams coming up, it's fine. अभी ही आपने preparation start करनी है AKU और NMD CAT के. उसका रीजन ये है बिकॉज देखें, आप अगर सेकेंड ईयर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसी की तो प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो आपने अगर ये प्रोग्राम भी ले लिया तो दिस विल एक्चुअली इनडायरेक्टली हेल्प योर सेकेंड ईयर एज वेल. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ. ठीक है, अब आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू of all the resources that you require for AKU and NMD CAT. Actually complete overview, brief नहीं, complete. ठीक है, प्लस पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैंने यही रिसोर्सेज बताई भी हैं. पिछले साल और इस साल की बहुत सारी कॉमन रिसोर्सेज हैं, बस सिर्फ कुछ डिलीशंस हो गई हैं, कुछ एडिशंस हो गई हैं इस वीडियो में. सो गाइज जस्ट स्टिक with me, all right, in this video, and don't worry, I'm gonna put in all those links down in the description box. Okay, so you guys can check that out later on. Now guys, AKU and NMD CAT 2022. All right, so again, exam paper pattern for AKU is the same. It's on their website aku.edu. okay, there will be a reasoning section and a sciences section. Okay, the reasoning section contains math reasoning and science reasoning, all right, whereas the sciences section would be from chemistry, biology and physics. Okay, FSC textbooks. Okay, first year and second year will be tested, but kaun se province ka, basically it's either the Punjab board or the federal board, meaning the Islamabad, the National Book Foundation Federal. Okay, not the Peshawar one. Okay, even if some students do prepare from Peshawar board, but it's better to just stick to these because these are the ones which I personally used and got into AKU. These are the ones which most of my juniors have been using and have been getting into AKU. So stick to these. Okay, so I'm gonna start out from AKU and I'm gonna end it on NMD CAT. And this year, and even in the previous year, the best thing about these 2 years is that most of the stuff overlap. Okay, it's not like you have to prepare, if you are from Sindh, it's not as if you have to prepare from the Sindh textbook for NMD CAT and from Punjab textbook for AKU. No, you just have to stick to one core curriculum. And let's get started now. Okay, so in 2022, let's first talk about AKU. Okay, so in AKU, you've got the reasoning and the sciences section, right? The sciences section has to be passed
separately and the reasoning section has to be passed separately. पेपर पैटर्न ऑफ AKU पर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वही वीडियो इस साल भी चलेगी, ठीक है, उसके लिंक में डाल दूंगा, पेपर पैटर्न, AKU's पेपर पैटर्न, ठीक है। अब उसमें जो आपका साइंसेस का सेक्शन है वो केम बायोफिजिक्स से आएगा, ठीक है। केम बायोफिजिक्स आपने कौन सी बुक्स को यूज करना है, पंजाब बोर्ड टेक्स्ट बुक को यूज करना है, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की केम बायोफिजिक्स, ठीक है, तीनों की तीनों आपको यूज करनी है। AKU ने अपना सिलेबस भी डाला हुआ है अपनी वेबसाइट aku.edu पर फॉर दिस केम बायोफिजिक्स, सो यू गाइस जस्ट पुल दैट आउट, ओके, एंड रीड इट। उसमें इट्स इन डिफरेंट, इट हैज मल्टीपल पॉइंटर्स इन इट, सो यू गाइस को जस्ट रीड द फर्स्ट पॉइंट, कवर इट फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक, देन रीड द सेकंड पॉइंट, कवर इट फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक, and so on. Or the second approach is just do the entire textbook and make sure that you've covered all of those points. क्योंकि करनी तो सब textbook है, reason उसका ये है because the same textbook will be used for NMD CAT as well, so it's better to just do the entire textbook, okay, covering those points which are highlighted in AKU's curriculum with particular importance, okay. फिर Federal Board or the National Book Foundation Islamabad Board, this can be used as a reference book, okay, along with Punjab Board textbook. But Islamabad Board जो है they don't have their own physics textbook, so what they do is they use Punjab Board's textbook. पंजाब बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स है ना, दे यूज दोज, यू डोंट। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि शी यूज पिशावर्स फिजिक्स टेक्स्ट बुक, ओके, सो guys, you don't need to do that, okay. If you are already doing Punjab, you don't need to do any other textbook, okay. That's going to be just an additional stuff. If you have time, you may do it. There's no harm in doing it, but it's best to just in this limited amount of time, it's best to just stick to the major core resources, okay. So federal board books can be used as a reference book, ठीक है। and जहां पर आपको कहीं पर भी आपको contradictions नजर आए ना, तो guys just go with the correct लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ओके, बिकॉज ये तो अब उस तरह का करिकुलम है नहीं कि जो पहले हुआ करता था। अगर सिंध का अपना एग्जाम होता था तो सिंध की ही टेक्स्ट बुक से उसकी की बनती थी, और चाहे वो गलत ही क्यों ना हो वही आंसर होता था, ठीक है। मेरे अपने टाइम में ऐसा ही था, लेकिन अब बिकॉज देयर इज जस्ट वन कॉमन करिकुलम, तो पंजाब बोर्ड इज गोना बी यूज, बिकॉज अभी रिसेंटली जो NMD CAT के एग्जाम हुए हैं पिछले 2 साल में, उन दोनों में भी कीज जो है वो पंजाब बोर्ड की ही लगी थी, ठीक है, बिकॉज पंजाब बोर्ड इज द मोस्ट ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक एज कम्पेयर टू ऑल द 4 प्रोविंसेस, ठीक है, और सबसे अच्छी अपडेटेड रिसोर्सेज भी इन्हीं की हैं, ठीक है, तो इसलिए जस्ट स्टिक टू पंजाब बोर्ड, ऑलराइट। देन फिजिक्स कॉमन का तो मसला हल हो गया। फिर उसके बाद ये तो साइंसेस का सेक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है। केम बायोफिजिक्स, Punjab board is the major textbook board, and then Islamabad board is used as a reference book, okay. अच्छा guys, एक और चीज बता दूं, if you are from Sindh, from Karachi or Sindh or anywhere else, ठीक है, from your own province, और आपने सिर्फ अपने अदर देन पंजाब और आपने उस प्रोविंस की टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई है, ठीक है, तो कोई घबराने वाली, कोई टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज द रीजन इज कि उन प्रोविंसेस की बुक्स और ये पंजाब बोर्ड की जो बुक है, दे ओवरलैप अ लॉट, ठीक है, बहुत सारा ओवरलैप होता है, बहुत सारी चीजें सेम ही होती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 70%, 80%, 60%, 65%, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस यू आर फ्रॉम, चीजें ओवरलैप करती हैं, ठीक है, तो इसलिए इट्स गोना बी अ लॉट मोर इजियर फॉर यू टू डू दिस टेक्स्ट बुक आफ्टर रीडिंग योर ओन प्रोविंशियल बुक्स, ओके, इट्स फाइन। आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया, ठीक है, इससे आप ये मत समझिएगा कि आपका टाइम ज़ाया हुआ है आपने अपनी बुक्स पढ़ के, बिकॉज ये जो है ये पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक और जो आपकी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक्स हैं उनको जो है उनमें ओवरलैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ओवरलैप जो है ना उससे आपके पास बहुत आसानी रहेगी, ठीक है, तो जस्ट अगर एंड अच्छा हाँ, एक और बात, अगर ए लेवल से हैं आपने तो आपको अपनी प्रोविंस की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली सिंध से जो यूजुअली मेरे जूनियर्स होते हैं वो मुझसे यही पूछते हैं कि सिंध बोर्ड पढ़ने की ज़रूरत है, AKU के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। AKU तो आता ही सिर्फ पंजाब बोर्ड से है या फेडरल से आता है, ठीक है, और अगर NMD CAT की बात करें तो हाँ, NMD CAT के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप पंजाब बोर्ड पूरी तरह अच्छी तरह से पहले कर लें, फिर टाइम बचा तो फिर आप सिंध बोर्ड कर लीजिएगा, ठीक है, वरना अगर ना भी किया तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो ये थी साइंसेस की बात, ठीक है, केम बायोफिजिक्स, जस्ट स्टिक टू पंजाब बोर्ड यूजिंग इस्लामाबाद बोर्ड एज द रेफरेंस बुक, ओके। पंजाब बोर्ड उसमें फिजिक्स का जो सेक्शन है वो पंजाब बोर्ड उसमें भी पंजाब बोर्ड का ही कवर होगा, यू डोंट नीड टू डू द पेशावर बोर्ड। फिर उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया था कि मैथ रीजनिंग इज फ्रॉम SAT 1 मैथ,
ओ लेवल डी मैथ और कैंगरू मैथ, ठीक है। कैंगरू मैथ के बहुत सारा मुश्किल क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, तो यू डोंट नीड टू डू द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बहुत बेसिक मैथ पूछी जाती है, ठीक है, सिंपल मैथ। एंड द रीजन व्हाई इंटर स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट इज बिकॉज दे हैव नेवर डन सच मैथ, ठीक है। मैथ बड़ी इजी होती है, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है मैथ, ठीक है। लेकिन इंटर स्टूडेंट्स यूजुअली व्हाई डू दे फाइंड इट डिफिकल्ट, द रीजन इज बिकॉज दे हैव नेवर सीन सच मैथ, ठीक है। उनको कभी उनकी करिकुलम का पार्ट नहीं होती, तो बस दैट्स द ओनली रीजन, वरना डिफिकल्ट नहीं होती। इट्स वेरी इजी टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैथ, ओके। एंड बाकी जो ओ लेवल के बैकग्राउंड में, ओ लेवल में आपका ए स्टार है, तो बस वही ओ लेवल की मैथ टेस्ट होती है, ठीक है। आप SAT-1 की मैथ जो है वो पढ़ लें, ठीक है, और कैंगरू मैथ के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें, बस दैट्स मोर देन इनफ। SAT-1 जो है मैं हमेशा जो है वो रेकमेंड करता हूं, SAT-1, जस्ट स्टिक टू SAT-1 एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। फिर उसके बाद, और जिनके पास ए लेवल में मैथ है, बस उनके लिए तो ये बहुत हलवा होगी, ठीक है, बहुत हलवा, लिटरली हलवा। फिर मैथ रीजनिंग के बाद आपके पास है साइंस रीजनिंग की भी बात होगी। एंड बाय द वे मैथ रीजनिंग में जो सिलेबस है, जो चीज़ें हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, सब कुछ जो है उसमें मैं डिटेल वीडियोस बना चुका हूं, उसकी भी लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सेट, मैथ रीजनिंग की भी बात हो गई। फिर उसके बाद आते हैं, ठीक है, ये तो था कोर करिकुलम, ठीक है, आपने करिकुलम कितना पढ़ा, कितना याद किया, सब कुछ ठीक है, हो गया। अच्छा, एक और बात बता दूं, AKU इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर इन 2022 on the 23rd July as given on their website aku.edu। NMD CAT जो है उसकी फिक्स डेट नहीं रहती, हर साल वेरी करती है, हर साल चेंज होती रहती है, अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में, ठीक है। तो इस दौरान में जो है कभी भी हो सकता है आपका NMD CAT, तो आप अगस्त को माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगस्त तक आपके पास 6 से 7 महीने ही हैं, या 8 महीने हैं अप्रोक्सीमेटली, तो 7-8 महीने, जो जितने भी महीने हैं आपके पास, वो आप जहन में रखिएगा अगस्त के, ठीक है। और वो जो महीने हैं ना, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर अगस्त में नहीं हुआ, अक्टूबर में शिफ्ट हो गया, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा। लेकिन यूजुअली वो इसके दौरान सितंबर में भी हुआ है एग्जाम, अक्टूबर में भी हुआ है एग्जाम, मेरे सामने हुए, ठीक है। अगस्त में हमारी डेट आई थी, लेकिन अगस्त में फिर हुआ नहीं था, वो सितंबर में पोस्टपोन्ड हो गया था, ठीक है। तो ये थी टाइमलाइन की बात, ठीक है। और एक जो 23 जुलाई बोला है, तो बहुत कम चांस है कि ये चेंज होगा। कहीं से मैंने सुना है कि हो सकता है ये जून में हो जाए, लेकिन बहुत कम चांस है, ठीक है। जुलाई 23 ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये हो गया। एंड फिर इसके बाद बात करते हैं, ये तो कोर करिकुलम है, ठीक है। आपने कोर करिकुलम कंप्लीट कर लिया, आपने टेक्स्ट बुक सारी पढ़ ली, केमिस्ट्री की पढ़ ली, बायो की पढ़ ली, फिजिक्स की पढ़ ली, बहुत अच्छे से कर लिया, यू आर गुड टू गो, ठीक है। उसके बाद आपको एक और बात बताऊं, ये टेक्स्ट बुक्स करने के बाद आपकी सिर्फ 50% तैयारी पूरी हुई होगी। क्या मतलब? यस, 50%। बाकी 50% कहां से करना है? बाकी 50% आपने करना है पास पेपर्स की प्रैक्टिस करके, ओके। बिकॉज आपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की होगी, सो योर कॉन्फिडेंस इज गोना बी ओवर हियर। जैसे ही आप पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट होके यहां ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द पास पेपर्स एंड डू इट वेरी वेरी नाइसली, ओके। अब ये पास पेपर की रिसोर्सेज मैंने यहां लिखी हुई है, मैं सब पढ़ लेता हूं, एक बार आपको बता देता हूं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर कोई MCQs की बात कर रहा है ना, MCQ टेक्स्ट बुक्स, मतलब MCQs कौन सी यूज करनी है, कहां से करना है, मतलब एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद उनके टॉपिकल्स कहां से प्रैक्टिस करने हैं। सो बेसिकली एनी रिसोर्स which is based on Punjab board and has MCQs based on Punjab board, you can use it, okay। अनीस हुसैन की मैं पहले recommend करता था, ठीक है, you guys can use that। बाकी उसके अलावा और सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे अच्छे, मतलब आपको पता है, किप्स हो गया या आगे पीछे जो भी नाम आप सुनते रहे हैं, उन सब की टॉपिकल टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं। उन सब के टॉपिकल टेक्स्ट बुक्स जो हैं, उनसे आप वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, टॉपिकल प्रैक्टिस, मतलब एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी क्रिटिकल अपने आप को असेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दैट्स नॉट द मेजर स्टफ, ठीक है। उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं होगी। बहुत अच्छी तैयारी आपकी पास पेपर्स करने से होगी। पास पेपर्स यूजुअली ईयरली मिलेंगे आपको, टॉपिकल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, टॉपिकल्स कंपाइल होते ही नहीं है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो कंपाइल करते हैं। अगर मुझे आगे कोई अच्छी रिसोर्स का पता चल गया तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू, बट अभी फिलहाल यू गाइस कुड स्टिक टू डूइंग द कोर करिकुलम फर्स्ट, ठीक है। करिकुलम आपने किया होगा तो फिर आप MCQs कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। वर्कशीट्स वगैरह अकेडमीज देती रहती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब पास पेपर्स की रिसोर्सेज का बता देता हूं। सिंध MD CAT के पास पेपर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। सिंध के अपने पास पेपर्स
जो कि बहुत सारी अकेडमीज ने कंपाइल किए हुए हैं, डाउ ग्रेड्स ने कंपाइल किए हुए हैं, ठीक है। डाउ ग्रेड्स की बुक आती है, उसमें ईयरली पास पेपर्स है, पता नहीं बहुत पुराने 24-25 पेपर्स इसमें मौजूद हैं ऑलरेडी, वो सारे करने से अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसमें आंसर की में बहुत ब्लंडर होते हैं, ठीक है। सब में ही आपको आंसर कीज में अच्छे खासे ब्लंडर्स मिलेंगे, तो उन आंसर कीज को करते हुए, उन क्वेश्चंस को करते हुए अगर आपको डाउट हो जाए ना, तो आप प्लीज़ आंखें और दिमाग खुला रख के कीजिएगा, एंड प्लीज़ रेफर टू योर कोर टेक्स्ट बुक्स, ओके। इसमें आपने सिंध एमडी कैट के पास पेपर्स कर लिए, पंजाब के यूएचएस के पास पेपर्स कर लिए, फिर यूएचएस नम्स के पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नम्स के बाद आपके एकेयू के अपने रिक्रिएटेड पास पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिक्रिएटेड पास पेपर चाहे किसी भी अकेडमी के आप उठा के कर लें, लेकिन कर लें। अनीस हुसैन के मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, बिकॉज वो हम स्टूडेंट से ही बनवाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से बनाए हैं उन्होंने, और मैं जितने भी स्टूडेंट्स निकले हैं उन सबको ही मतलब मैंने यही रेकमेंड किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया उनका। एकेयू के रिक्रिएटेड पास पेपर्स मैंने खुद भी किए थे, उससे बहुत सारे अटेम्प्ट हुए भी थे, और अपने एक लिंक डालूंगा मैं, ठीक है, मेरे इसी चैनल पर एकेयू के पास पेपर्स की वीडियोस मैंने बनाई हुई 2012 की। वो पास पेपर्स की जो वीडियोस है ना, उनको भी आप देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें जो है आपके पास एकेयू 2012 का जो पेपर है वो एक्चुअल पास पेपर्स से बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत मिलता जुलता है, 95% तकरीबन मैच करता है, ठीक है। यू गाइज हैव टू रेफर टू दैट, ठीक है, वो लिंक चेक कीजिएगा। एकेयू रिक्रिएटेड पास पेपर्स ये तो अलग है भाई, ये तो सिर्फ एकेयू के लिए है, ठीक है। एनएमडी कैट के लिए भी काम आएगा, लेकिन एकेयू के लिए कुछ भी ना करें, लेकिन ये पास पेपर्स आपने करने ही करने हैं, रिक्रिएटेड पास पेपर। आजकल तो सॉफ्ट कॉपी में भी आने लग गए हैं, यू गाइस कैन डू दैट। मेरे फेसबुक के जो ग्रुप है ना, उसमें आपको मिल जाएंगे सॉफ्ट कॉपी के, किसी ने शेयर किए थे किसी ज़माने में, आई थिंक पिछले साल ही शेयर किए थे किसी ने, तो यू गाइस कैन गो। अच्छा, फेसबुक ग्रुप की भी लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। एकेयू के रिक्रिएटेड पास पेपर्स आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। डाउ ग्रेड्स भी हो गए, नम्स के पास पेपर्स, यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के अपने पास पेपर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि द रीज़न व्हाई आई एम रिकमेंडिंग देम इज़ बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन पंजाब बोर्ड टेक्स्ट बुक, ठीक है, पंजाब बोर्ड के ही करिकुलम पर बेस्ड हैं, तो यू गाइस कैन डू दैट। अच्छा, ये कब हुआ करते थे? ये जब एनएमडी कैट से पहले उनका एग्जाम हुआ करता था, पंजाब का अलग यूएचएस कंडक्ट करता था, तो उस वक्त वो पंजाब से ही टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस डाला करता था। और नम्स इज आल्सो बेस्ड ऑन पंजाब, ठीक है। सिंध एमडी कैट इज ऑल्दो इट्स बेस्ड ऑन सिंध, बट इट हैज गुड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब हो गए। फिर उसके बाद क्या बचा है, क्या बचा है? इंग्लिश की बात कर लें। इंग्लिश भी किसी ने पूछा था, तो एकेयू में इंग्लिश होती ही नहीं है, ठीक है। एकेयू में देयर इज नो इंग्लिश एट ऑल, सो यू गाइस डोंट नीड टू वरी अबाउट इंग्लिश। हाँ, इंटरव्यू के स्टेजेस में हो सकता है इंग्लिश की थोड़ी सी जरूरत पड़े, ठीक है। तो इंग्लिश नहीं, वैसे इंटरव्यू में भी अगर आपको उर्दू में अगर बात करनी आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे, ऑलरेडी मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूँ, यू गाइस कैन गो एंड रेफर टू दैट एज वेल, लिंक डाल दूंगा अगेन। लेकिन इंग्लिश, एनएमडी कैट की जो इंग्लिश है उसके लिए आपने अलग से कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी, बिकॉज बहुत थोड़ा होता है इंग्लिश का सेक्शन और बहुत इजी होता है, यूजुअली निकल ही जाता है, ठीक है। जो टाइम आप इंग्लिश को दे रहे हैं ना, इट्स बेटर टू जस्ट गिव इट देम टू योर बेसिक साइंसेस, ठीक है। केम बायोफिजिक्स को दे दें वो टाइम, क्योंकि वो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ऑलराइट। ये भी हो गया। अब एक और लास्ट में एक अच्छी अनाउंसमेंट कर रहा हूं गाइस। ये सारा कुछ जो है ना, अगर आपने मेरे साथ मेरी सुपरविजन में पढ़ना है, ठीक है। मैंने रिसेंटली ही 7 जनवरी में मैं पोस्ट डालता रहा हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर, ठीक है। उसमें एकेयू एनएमडी कैट का बैच, प्रॉपर बैच 6 मंथ्स का हमारा स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, बल्कि एक हफ्ता गुजर गया, ठीक है। इफ यू गाइज वांट टू रजिस्टर देयर, इट्स पेड बाय द वे, एंड मिनिमम आपके 75% मैट्रिक में परसेंटेज होगी, तो ओनली देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। एंड ओनली द हाई स्कोरर्स आर प्रेफर्ड मोर, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, मतलब हर किसी को ले नहीं सकते। अगर आपने एकेयू के लिए आप सीरियस हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स दैट आई एम ऑफरिंग, ठीक है। उसमें पर वीक 5 क्लासेस हैं, ठीक है, एक घंटे की, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज वांट टू जस्ट जॉइन इन। अच्छा, बाय द वे उसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथ रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ रीजनिंग। बायोलॉजी इज नॉट कवर्ड। द रीजन वाई बायोलॉजी इज नॉट कवर्ड इज बिकॉज बायोलॉजी इज अ सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें टीचिंग इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत थोड़ी होती हैं, ठीक है। सो उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं केम एंड फिजिक्स में, तो वो उसके जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं वो सारा कुछ आपके इस
प्रोग्राम में कवर हो जाएंगे। प्लस आपकी जो AKU का इंटरव्यू की प्रेप है अभी से जो स्टार्ट करनी है, ECAs वगैरह की जो गाइडेंस वगैरह एंड एवरीथिंग, वो मैं आपको इसी प्रोग्राम में दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इट्स लाइक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज इफ यू गाइज आर एमिंग फॉर AKU डायरेक्टली। अगर AKU नहीं कोई और यूनिवर्सिटी है तो देन यू गाइज मे और मे नॉट ज्वाइन दिस प्रोग्राम, बिकॉज इसमें 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बट AKU के लिए दिस इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, ओके। सो इफ यू गाइज वांट टू ज्वाइन इन, जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, जो कि मैंने नीचे दे दिया है, ठीक है। फेसबुक पे टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे मैं बहुत लेट रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम इज मोर फेवरेबल फॉर यू गाइज। दैट्स ऑल गाइज। अच्छा, एंड एक और बात बता दूं, चाहे आप सेकेंड ईयर की प्रेप कर रहे हो, चाहे आप A2 की प्रेप कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज की प्रेप कर रहे हो, और अगर आप A2 में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, तो नाउ इज योर perfect time to start preparing if you are appearing for the NMD CAT in 2022. अगर 2023 में appear होना है तो फिर obviously you guys can delay it, but अभी अगर 2022 में आप appear हो रहे हैं तो now is the golden time to start, okay। इसके बाद आपके पास अगर इसके बाद आप start करेंगे, you guys will be late, ठीक है। मैं अभी से बता रहा हूं, you guys will be late. Now is the perfect time. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ही आ जाओ, अभी आ जाओ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप खुद से प्रिपेयर करें, आप अपनी सेल्फ स्टडी करें, बिकॉज NMD CAT इज मोस्टली सेल्फ स्टडी। इसमें भी मैं आपको ज्यादातर सुपरवाइज कर रहा हूँ, आपको रिसोर्सेज अच्छी दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको वर्कशीट्स वगैरह दे रहा हूँ, अच्छी रिसोर्सेज बता रहा हूँ, लेकिन मेहनत तो इन दी एंड आपकी अपनी ही होगी ना। सेल्फ स्टडी तो आपको अपनी ही करनी है, ठीक है। MD CAT इज मोस्टली सेल्फ स्टडी, ऑलराइट। सो अगर आपकी अपनी सेल्फ स्टडी अभी से आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है, इससे ज्यादा आप डिले अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ऑलराइट गाइस। सो अभी आपने अगर बुक स्टार्ट नहीं खोली तो अभी खोलें। अगर आपने सिर्फ अपने A2 या सेकेंड ईयर के लिए प्रिपेयर किया है, नहीं, बस बहुत हो गया, अब नाउ यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद अगर आप करेंगे तो यू गाइज विल बी लेट, मैं अभी से बता रहा हूं, ऑलराइट। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। एंड जितने गाइज अभी रिजल्ट आ गए हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड, इट्स फाइन। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, इट्स फाइन, गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, ओके, इट्स फाइन, जस्ट गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। पूरी दुनिया जाती है, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में मैं कितनों को जानता हूं जो कि डाव पहुंच गए हैं। डाव मतलब कितनी कंपेटिटिव जगह है, वो सेकंड अटेम्प्ट पे पहुंचे हैं। तो यू गाइज कैन डू इट, जस्ट स्टे फोकस, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट से कुछ नहीं होता, बाकी जस्ट डू योर वेरी बेस्ट and leave it on the Almighty God, Allah, ठीक है, leave it on Allah, ठीक है। So just best of luck and Allah Hafiz.